Hello everyone, very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss important history questions and this is going to be part 1 and we will continue this series, okay? And for all those students जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आपको मिल सके. So let's start. The first question is, which is known as the mini Harappa? Right answer is Lothal. Lothal is known as the mini Harappa. Okay, and this site it is excavated by the Ranganath Rao in the year 1953. Okay, and this site it is found in Gujarat, and here the man-made port and the dockyard found here. Okay, then second, where did Rig Vedic Aryans live in India? भारत में ऋग वैदिक आर्यन कहाँ रहते थे? Here the right answer is Sapta Sindhu area. Okay, and this area it lies in the area of Afghanistan, Pakistan, and Punjab. Okay, then who is known as the father of Indian unrest? भारतीय अशांति के जनक किन्हें कहा जाता है? ये राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक. ओके, इनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं. And he was the founder of Indian Home Rule League. Okay, and इन्होंने दो न्यूज़पेपर रिलीज किया था. पहला किया था केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था, फिर दूसरा किया था मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था. ओके, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. Then when जलियांवाला बाग मैसेकर took place, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? It is in the year 13th April 1919. Okay, year is very important. कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये और हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं विद द डेट. ओके, ईयर ये दे देगा 1919 बट डेट चेंज कर देगा. Here the full date and the year is important. That is in 13th April 1919. Then next question is, who was called Jinda Peer in Mughal time? Right answer is Aurangzeb. Okay, he was called Jinda Peer, and actually Jinda Peer is a title given to Aurangzeb. Okay, and another title that is given to Aurangzeb was that Alamgir. Okay, so these both two titles are very important that are related to Aurangzeb. The next, Khilafat movement was organized to protest against the injustice done to. Here the right answer is Turkey. Okay, Khilafat movement कब हुआ था? It is in the year 1919 to 1924. National anthem was adopted by the Constituent Assembly on. राष्ट्रीय गान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? It is in the year 24th January 1950. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. The next, खजुराहो group of monuments are attributed to which dynasty? जो खजुराहो group of monument है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, किस डायनेस्टी ने इसको बनवाया था, कंस्ट्रक्ट किया था? दैट इज चंदेला डायनेस्टी. ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एंड जो खजुराहो ये मोन्यूमेंट है इट इज रिलेटेड टू द हिंदू एंड जैन टेम्पल. ओके, एंड खजुराहो ये मध्य प्रदेश में है और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है. ओके, द नेक्स्ट, which world heritage site comprises the tomb of Iltutmish? The right answer is Qutub Minar. Okay, Qutub Minar इसका कंस्ट्रक्शन स्टैब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. Completion of this monument is done by Iltutmish. Okay, then next, which world heritage site comprises of the Alai Darwaza Gate? अलई दरवाजा गेट कहाँ पे है? तो दैट इज इन कुतुब मीनार. ठीक है, एंड अलई दरवाजा गेट इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी. गांधीजी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन. राइट आंसर इज 1920. ओके, द नेक्स्ट, हु बिल्ट जोधपुर फोर्ट? राइट आंसर इज राव जोधा.
He built Jodhpur Fort, and Jodhpur Fort is also known as Mehrangarh Fort. Okay, कोई भी नाम पूछ सकता है, ठीक है. Where is the Brihadishwar temple built during Chola period located? Okay, the question is asking Brihadishwar temple कहाँ पे located है? Actually ये तंजावुर में है, ठीक है, काफी important question है ये. And it is constructed by Chola Kingdom. Okay, Chola dynasty के द्वारा इसको बनाया गया है by the king Raja Raja Chola I. Okay, and the founder of the Chola dynasty was Vijayalaya. The next, the people of the Indus Valley civilization worshipped. Right answer is Pasupati. Then the first battle of Panipat was fought in the year. First battle of Panipat कब हुआ था? That is in the year 1526. Okay, and it is fought between Babur and Ibrahim Lodi. Okay. The next, the Arya Mahila Sabha was founded by. आर्य महिला सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इज पंडित रमाबाई. ओके, एंड the main the motto behind the formation of this Arya Mahila Sabha was that just to promote the women education and stopping the child marriage. Okay, the next, the Mohammedan Anglo Oriental College of Aligarh was founded by. Right answer is Sir Syed Ahmad Khan. Okay, and this college was established in the year 1875. The next, which reform movement was the first to be started in the 19th century? Here the right answer is Brahmo Samaj. Okay, जो कि establish किया गया था by the Raja Ram Mohan Roy in the year 1828. The next, who was the founder of Ramakrishna Mission? Right answer is Swami Vivekanand. He founded the Ramakrishna Mission, okay, in the year 1897. The next, who is known as the Martin Luther of India? The right answer is Swami Dayanand Saraswati. इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. The next, बिम्बिसारा was the king of which dynasty? बिम्बिसारा ये कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? The right answer is Haryunka dynasty. Okay, the capital of Haryunka dynasty was Rajgira. Then Ajanta caves in Maharashtra have rock cut cave monuments of which religion? जो अजंता केव है महाराष्ट्र में वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करती हैं वो केव्स? द राइट आंसर इज बुद्धिज्म. ठीक है, वो सारी केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट की हैं. एंड देयर आर 29 केव्स. 29 केव्स है वहां पे. ठीक है. द नेक्स्ट, whose region in Indian history is called the golden age of India? ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसके शासन काल में कहा जाता था? द राइट आंसर इज गुप्ता एम्पायर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस. एंड गुप्ता एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द श्री गुप्ता. इन विच ईयर शिवाजी वाज क्राउंड एज छत्रपति? कौन से ईयर में इनको छत्रपति की उपाधि दे दी गई थी? द राइट आंसर इज इन द ईयर 1674. काफी इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली शिवाजी ही फाउंडेड द मराठा एम्पायर. एंड शिवाजी इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 में, 1627 में. एंड उनकी जो मदर थी उनका नाम था जीजाबाई. उनके फादर थे उनका नाम था शाहजी भोसले. एंड उनके जो गुरु थे शिवाजी जी के वो थे रामदास. ठीक है. एंड 1674 में उन्होंने कैप्चर किया था रायगढ़ फोर्ट. ठीक है. तो वो कैप्चर करने के बाद इनको टाइटल दे दिया गया था छत्रपति का. ठीक है. द साउथ इंडियन रूलर हु इंट्रोड्यूस्ड सेरिकल्चर एज एन एग्रो इंडस्ट्री इन हिज किंगडम वाज? राइट आंसर इज टीपू सुल्तान. काफी इंपॉर्टेंट है ये. द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? फर्स्ट पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? राइट आंसर इज राजगिरा. ठीक है. एंड राजगिरा
ये कैपिटल किसकी थी? हर्यंको डायनेस्टी की थी, कैपिटल थी। एंड एट दैट टाइम रूलर कौन थे? वो थे अजात शत्रु। जब ये काउंसिल हुई थी उस समय रूलर अजात शत्रु थे। एंड जो इस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो थे महाकश्यप। ठीक है। एंड दे आर टोटल 5 काउंसिल, 5 काउंसिल हुई है बुद्धिस्ट की। ठीक है, वो पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके रूलर इंपॉर्टेंट है एंड द डायनेस्टी एट दैट टाइम वाज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड द प्रेसिडेंट। ओके, then who was the founder of the Satavahana empire? Right answer is Simuka. Who was the first woman president of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? द राइट आंसर इज एनी बेसेंट। ठीक है, एंड शी फाउंडेड द ऑल इंडिया होम रूल लीग। और कहाँ पे इन्होंने चालू किया था ऑल इंडिया होम रूल लीग? दैट इज इन मद्रास। ठीक है, एंड जो एनी बेसेंट थी ये प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में, जो कांग्रेस सेशन हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, then who was the first Indian to have entered the Indian civil services? Right answer is Satyendra Nath Tagore. Okay, then where in India did Portuguese built their first factory? जब पोर्तुगीज इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की थी? राइट आंसर इज कोचिन। ओके, सबसे पहले वो लैंड किए थे गोवा में, देन उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कोचिन में। और पोर्तुगीज के जो फर्स्ट वाइसरॉय वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो किसने दी थी? तो वो दी थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने दी थी। ठीक है, एंड रियल फाउंडर कौन थे पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर। ओके, एंड पोर्तुगीज इंडिया आए थे तो ये क्या चीज लेके आए थे अपने साथ में? एक तो अपने इंडिया में पहले आलू नहीं थे। ठीक है, जो आलू की खेती है ये पोर्तुगीज लेके आए हैं अपने इंडिया में। एंड यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस ये भी पोर्तुगीज लाए थे। एंड वन मोर थिंग, जो टोबैको तंबाकू तो वही पोर्तुगीज लेके आए थे इंडिया। ठीक है, एंड आई होप आपको लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये। एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड द टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री and we will continue this series. Okay, please like and share this lecture among your friends. Till then, goodbye and thank you.